हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 1 का स्पीड अप वाला क्या कहते हैं सुपर संदूक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। अभी तक हम जितने भी एमसीक्यूज करते आ रहे हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6 विथ यूनिट नंबर 1। स्पीड करेंगे ताकि हम फटाफट से एग्जाम्स में भी रिवाइज कर सकें। आइए जी, पहला क्वेश्चन, which of the following is not a component of gross domestic product? इनमें से कौन सा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कंपोनेंट नहीं है? कंजम्पशन, ट्रांसफर पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और योर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। क्या होगा आंसर इसका? नहीं है ट्रांसफर पेमेंट्स। अपने अपने आंसर्स जैसा कि रूल है आप अपने क्या करते जाओ, ऑप्शंस जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है आप अपने पेपर पे लिख लो या कमेंट भी कर सकते हो। साथ के साथ फाइनल स्कोर जरूर से जरूर अपना जज करना। नेक्स्ट, net national product NNP is calculated by subtracting depreciation from GDP, adding depreciation to GDP, subtracting depreciation for GNP, adding net export to GNP। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जब हमें नेट चाहिए होता है हम उसको क्या करते हैं, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? डी सी सॉरी। नेक्स्ट, द वैल्यू once हाँ जी, द वैल्यू ऑफ आउटपुट produced by a country's factor of production regardless of location is known as GDP, GNP, NDP, NNP। क्या होगा? GNP। नेक्स्ट, which of the following best represent real GDP? इनमें से कौन सा रियल जीडीपी को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है? GDP adjusted for net exports, GDP adjusted for inflation, GDP minus depreciation, GDP plus government spending। Option is B, GDP adjusted for inflation। The sum of all incomes earned by factors of production in a country excluding indirect taxes and including subsidies known as GDP at market price, GNP at market price, GDP at factor cost or NDP at factor cost। Answer C, yes। Next, which of the following is included in the calculation of GDP? इनमें से कौन सा जीडीपी की कैलकुलेशन में इंक्लूड होता है? अनपेड डोमेस्टिक वर्क, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज और ट्रांसफर पेमेंट। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, national income is a measure of total wealth of a country, total income earned by the resident of a country, total stock of money, total expenditure of the government। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, total income earned by the resident of a country। Which of the following is used to measure the standard of living in an economy? Per capita income, national income, GDP और NNP? Per capita income। Next, GDP can be measured using which of the following method? Income approach, expenditure approach, output approach या all of the above? Answer is all of the above। Next, which of the following represent the market value of all the final goods within a country in a given period of time? भाई विद इन अ कंट्री आ जाए तो डी याद आ जाता है, डोमेस्टिक। ठीक है, अब क्या कह रहा है? मार्केट वैल्यू बता रहा है। तो क्या होगा ऑप्शन? कौन सा करेक्ट होगा? जीडीपी। नेक्स्ट, which of the following is a flow concept? national wealth, capital stock, national income और money supply। क्या होगा? नेशनल इनकम। फ्लो कंसेप्ट कौन सा होता है? नेशनल इनकम। क्या हम डिडक्ट करते हैं फ्रॉम जीएनपी टू कैलकुलेट एनएनपी? वेरी सिंपल आंसर, दैट इज अ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनमें से कौन सा इंडिकेटर है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, इंक्रीज इन एनएनपी, इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन जीएनपी या ऑल ऑफ द अबव। वेरी सिंपल आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। पर्सनल इनकम कैन बी क्लासिफाइड एज national income minus corporate tax, income received by household, national income minus government revenue या फिर national income minus depreciation, income received by households. Next, which of the following measure the income earned by resident of a country including net income from abroad? GDP, NDP, GNP or NNP? GNP. Next, the difference between gross domestic product and the net domestic product, depreciation. अब देख लो एक डेप्रिसिएशन का ही कितने वैरायटी बन सकते हैं क्वेश्चन, तो अपने कंसेप्ट्स को ध्यान में रखो बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। Which of the following is considered a leakage in the circular flow of income, consumption, investment, taxes or export taxes? Which of the following best describe the term double counting in national income accounting? कब हमें लगता है कि it's a double counting? जब वो डबल हो जाए, ट्वाइस हो जाए, तो आ जाओ जी। काउंटिंग इंटरमीडिएट गुड्स इन GDP, counting only final goods and services, counting only domestic goods या फिर counting goods and services twice in a national income. डबल काउंटिंग कब मानी जाएगी? जब twice in a national income हो जाएगा। Next, which of the following is a transfer payment? Salary, profit, unemployment benefits या फिर rent? Unemployment benefits. Salary क्या मानी जाती है? जो वो काम कर रहा है उसका। प्रॉफिट में भी कहीं ना कहीं काम होता है। रेंट, आप किसी चीज को यूज कर रहे हो तब आप दे रहे हो, यहाँ पे आपका फिजिकल होता है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट यानी कि एक तरीके से कुछ काम नहीं कर रहे फिर भी हमें ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह मिल रही है, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। Which of the following is not included in a GDP? Final goods and services, intermediate investment या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो नहीं होता इंक्लूड, इंटरमीडिएट कोर्स। ये थे मेरे 20 क्वेश्चन। हाँ जी, अपना स्कोर फटाफट से कमेंट करो कि आपको 20 में से कितने आपके करेक्ट हुए हैं। और उसके साथ साथ प्लेलिस्ट बन चुकी है आपकी, इकोनॉमिक्स की क्विज की ही प्लेलिस्ट बनाई है, चैप्टर विद यूनिट वाइज। तो आपको इसको क्विक रिवाइज करने में हार्डली 1 घंटा नहीं लगता, क्योंकि आप सबको पता है 7-8 मिनट की वीडियो बन रही है। जो आप आगे का और पीछे का वो तो आप वैसे भी स्किप कर देते हो 1.25x की स्पीड में, है ना जी। तो अब मिलते हैं हम यूनिट नंबर 2 की रिवीजन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक अपने आप को ब्रश करते रहो, अपनी जो भी टेक्निक्स है, जो भी कंसेप्ट है, उनको रिवाइज करते रहो, रिलैक्स होके पढ़ो, टेंशन में मत पढ़ो, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।